Heat wave warnings and red alerts have now been issued across several parts of North India as temperatures soar to about 50 degrees Celsius, particularly in Rajasthan. Some states that have been flagged by the IMD include Haryana, Rajasthan, Punjab, parts of Uttar Pradesh as well. Schools in Haryana have been advised to remain closed till 30th June. And meanwhile, Rajasthan is also experiencing high temperatures, and similar such advisories have been issued there as well. Meanwhile, heat strokes have been adversely affecting people, and 2 deaths have been reported so far due to extreme heat stress. A host of my colleagues are joining me on the broadcast, whether from Lucknow, Jaipur, Delhi, Noida as well. But before that, you can of course see those visuals on your screens of people carrying umbrella with them. They're also, covering themselves with clothes, with a piece of fabric as they go out over the course of the day to take shelter from the scorching heat. I also have with me on my screen open over here a map that of course shows the real-time data. It is currently 9:30 this morning. I request the team upstairs to show what I have on my screen so that you can see exactly what North India looks like at the moment. Yes, right here on your screens, this is how North India is looking at the moment. The screen where I am circling my cursor is red, showcasing that the temperature has soared to beyond 40 degrees Celsius in New Delhi. The temperature currently stands at 38 degrees Celsius. In Rohtak in Haryana, it's at 38 degrees Celsius. In Hisar, it's at 39. Shifting focus to Chandigarh, the temperature stands at 36 degrees Celsius this morning as of 9:30. Even in Uttar Pradesh, in Lucknow, it is 35 degrees Celsius. In Agra, 40 degrees Celsius. In Punjab, in Jalandhar, it is 35 degrees Celsius. In Rajasthan, in particular, in areas such as Jaipur, the temperatures touch 39. In Tonk, it is 40. Kota, it is 39 as well. So you can see exactly how hot it is currently, and of course people have been suffering under this heat over the last few weeks, but it is expected that such temperatures will continue to persist for more than a month, to about a month and a half till mid-July as well. So, of course, this is how North India looks like currently, but also joining us on the broadcast are a host of my colleagues this morning. Let's in fact go across to them, try and get an understanding of what's happening on the ground. I'd first like to go across to my colleague Ravi, who's joining us from Lucknow. Ravi, over to you. You're standing under the sun. How does it feel like? What are the advisories that have been issued by the government, especially with regards to how to take care of oneself, as well as the schools and the institutions over there? हाँ, देखिए, स्कूलों की अगर बात करें तो सुबह से ही स्कूलों के जो समय में परिवर्तन किया गया था। सुबह के स्कूल है वो कर दिए गए, दिन के स्कूलों को फिलहाल अभी सुबह की तरफ परिवर्तित कर दिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी सुबह की अगर बात करें 33 डिग्री के करीब अभी तापमान है, और आज लखनऊ के अगर तापमान की बात करें तो तकरीबन 46 डिग्री के करीब, माफी चाहते 44 डिग्री के करीब ये तापमान है वो जाने की संभावना जताई गई। हालांकि सुबह और शाम के तापमान में कुछ कमी जरूर रहती है, लेकिन अभी अगर बात करें तो करीब 9:30 बज चुके हैं और अभी 33 डिग्री के करीब तापमान है, और 10 बजे के करीब ये बढ़ते हुए जो तापमान है 36 डिग्री हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते फिर ये तकरीबन 44 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि जब दिन के करीब जब 4 बजेंगे, यानी 3 और 4 बजेंगे, उस वक्त 43 से 44 डिग्री के करीब तापमान होने वाला है। और फिलहाल अभी कुछ दिन राहत भरे होने वाले नहीं है, ये साफ किया है मौसम की जानकारों ने। और जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी हो रही है, आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में जो भी जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह प्याऊ व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो छांव का सहारा लें, और अगर हो सके तो धूप से बचने की जो भी जरूरी इंतजाम है वो करें, खुद के चेहरे को ढक के रखें, पानी का सेवन समय समय पर करते रहें, और अगर ये धूप से अगर बीमार होते हैं तो आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। बीमार ना हो इसके लिए धूप से
जहां तक कोशिश करें बचे। हालांकि अस्पतालों में भी इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, ORS काउंटर बनाए गए हैं। अगर लोग इस गर्मी से अगर बीमार होकर अस्पताल पहुंचे तो उनको समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए और जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ी हुई है, तकरीबन एक हफ्ते अभी फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जून के लास्ट में करीब 23 जून के आसपास से लखनऊ में ये मानसून आने की संभावना जताई गई है। उससे पहले लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें या आने वाले एक हफ्ते की बात करें तो लगातार भीषण गर्मी अपना असर छोड़ रही है। सुबह से शाम के तापमान में भले ही कुछ कमी जरूर रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी है वो अपना विकराल रूप लेती है और वैसे वैसे लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है गर्मी। और लगातार जिस तरीके से आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में लोगों की परेशानी है वो लगातार बढ़ी हुई है। बिजली की आवाजाही भी लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की मांग भी बढ़ी हुई है। हालांकि एसी का जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी और उमस हो रही है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही जो दिन में लू चलती है तो उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी होनी पड़ रही है। और लगातार जिसकी वजह से परेशानी है वो लोगों को बीमार होने का सिलसिला है वो भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है उसकी वजह से लोगों की परेशानी है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। जी Indeed, and several other of our colleagues are also joining us. Speaking of UP, also with me on the broadcast is my colleague Mahendra Mahi. Mahendra, you, in contrast, are standing under the shade, taking slight respite from the heat that has gripped the city. We know that there is, in fact, advisory that has been issued, but summer vacations are also commencing, so it seems that there is slight respite for the students in particular. But what about the others? What are the advisories to the other offices and institutions in and around the area? मई के महीने में इस प्रचंड तरीके से पड़ रही है कि उसने जून का महीना फेल कर दिया। अधिकतर ये होता है कि जून में भीषण गर्मी पड़ती है, मगर इस बार गर्मी की जो शुरुआत हो पहले हो चुकी थी, यानी कि 10 दिन पहले ही जो बच्चों की छुट्टी थी वो कर दी गई अगले आदेश तक। वही अब जो 12वीं क्लास तक की छुट्टी है उसको भी घोषित कर दिया गया कि अगले आदेश तक ये स्कूल बंद रहेंगे। और जिस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा है, सुबह के वक्त अगर आप देखेंगे तो सुबह 8 बजते ही जो तापमान है नोएडा का वो 36 के पार पहुंच जाता है, और जैसे ही 10 बजते हैं या 10 से 11 बजते हैं वो तापमान 40 से पार पहुंच जाता है। दोपहर के वक्त सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप देखा जाता है। दोपहर 12 बजे के समय तकरीबन जो तापमान है वो 47 के आसपास देखा जाता है। वही दोपहर में जब आप सड़कों पे निकलेंगे तो सड़कों पे इक्के दुक्के लोग होंगे, या तो रिक्शा चालक होंगे, ऑटो चालक होंगे, जो लोग होते हैं बिल्कुल नदारद रहते हैं। गर्मी से बचने के लिए या तो वो मॉल का सहारा लेते हैं या वाटर पार्क का सहारा लेते हैं, मगर जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है उससे आम आदमी के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। सड़कों पे अगर आप देखेंगे कि नोएडा NCR बिल्कुल एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है। यहाँ आपको नदियां नहर नहीं मिलेंगी, पेड़ पौधे इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जो गाँव में होता है। तो जो पशुएं होते हैं उनको पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। नोएडा प्राधिकरण ये तो कह रहा है कि हम इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, प्याऊ की व्यवस्था करेंगे, मगर वो व्यवस्थित नहीं हो पा रही, वो जमीन पे दिखाई नहीं दे रही। कल नोएडा पुलिस के द्वारा तमाम जो नोएडा के रेड लाइट एरिया है वहां जो 2 वाहन रुकते हैं उनके लिए पर्दे लगाए गए, यानी कि ग्रीन शैडो लगाए गए, ताकि वो लाल बत्ती पे जब रुके तो धूप से थोड़ी बहुत वो राहत पा सके। मगर जिस तरीके से लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे नोएडा के लोगों का बहुत बुरा हाल है। वहीं IMD का साफ तौर पे कहना है कि अभी आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली, जो बारिश की संभावना है वो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि महीना ये मई का खत्म होने वाला, उसके बाद जून का महीना शुरू होगा, तो इसके बाद और जो गर्मी है प्रचंड पड़ती रहेगी। सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। खासकर अगर बात करें छोटे बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। अधिकतर मरीज आपको जिला अस्पताल में ऐसे मिलेंगे जिनको लू लगी है, या जिनको वॉमिटिंग हो रही है, या जिनको हीट स्ट्रोक का अटैक आया है, ऐसे मरीज मिलेंगे। वही डॉक्टरों का भी साफ तौर पे कहना है, देखिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। एक तो आपको खाली पेट नहीं निकलना, जितना कोशिश करें पानी पीते रहे, टाइम आधे घंटे में रोज मतलब टाइम टू टाइम पानी पीते रहे, लिक्विड का सेवन करें, फल फ्रूट खाएं, और कोशिश करें जो फास्ट फूड होते हैं यानी कि जो काफी तले पदार्थ होते हैं उसको ना खाएं, समोसा वमोसा फास्ट फूड इसको ना खाएं, क्योंकि इसको खा के आप बीमार पड़ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो भी बार बार ये कह रहा है कि अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो, क्योंकि दोपहर में सबसे ज्यादा प्रचंड गर्मी नोएडा में देखी जाती है, 47 के पार
जो टेम्परेचर वो क्रॉस कर जाता है। तो प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, और इस दौरान आपको आपके परिवार का, जो घर में छोटे बच्चे हैं, जो घर में बुजुर्ग हैं, उनका विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। सुबह जो बच्चे हैं वो बाहर पार्क में चले जाते खेलने, तो उनको आपको रोकना पड़ेगा। सुबह जो घर में आपको बुजुर्ग होते हैं जो सुबह पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हैं, उनको थोड़ा कहना पड़ेगा, क्योंकि जो धूप है सुबह 7 बजे से ही अपना विकराल रूप दिखा देती है, और सुबह से ही जो टेम्परेचर है वो 36-37 तक नोएडा में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए, नोएडा में काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो हवा चलती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो फेस करते हैं, और जो तमाम वो फील्ड वर्कर है जो फील्ड में रहकर अपना काम करते हैं, जैसे हम डिलीवरी बॉय की बात करें या जो ई रिक्शा चालक की बात करें, ऑटो रिक्शा चालक की बात करें, तो उनके लिए मौसम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। तो बच के थोड़ा रहना पड़ेगा इस गर्मी में, क्योंकि जिस तरीके से जो गर्मी है पहले परेशान करती थी, मगर अब ये गर्मी बिल्कुल जानलेवा हो चुकी है। खासकर नोएडा में तो स्थिति ये हो चुकी है कि आपको छुपने के लिए ना यहाँ पेड़ है, ना पौधे हैं, ना नदियां हैं। अगर आपको बचना है तो मॉल जाना पड़ेगा। मॉल की स्थिति ये हो चुकी है कि मॉल में भी अब जो टेम्परेचर है, क्योंकि मॉल में बड़ा एसी का प्लांट लगा रहता है, तो वहां भी जो गर्मी है अंदर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वहां भी लोगों को राहत नहीं मिलती। दूसरी बात, क्योंकि सबसे ज्यादा नोएडा में बिजली कटौती की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। रात के वक्त नोएडा के तमाम ऐसे सेक्टर है जहां नो कट पावर जोन कहलाया जाता है, वहां 3-3, 4-4 घंटे बिजली काटी जाती है। लोग अपने परेशान होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आसपास जो पार्क होता है वहां बैठते हैं। तो बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। दूसरी संकट जो यहाँ है, पानी की समस्या आने लगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो पानी की सप्लाई में भी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, खासकर जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए तो दोहरी मार। एक तरफ तो गर्मी है ही, दूसरी तरफ उनके यहाँ जो बिजली कटौती की जा रही है उससे बहुत लोग Indeed, a परेशान हैं। two-pronged problem for them. But I'd also like to take this conversation forward to Mehndi, who's joining us from Delhi. Mehndi, Mahindra has spoken about electricity consumption and power cuts as well, and we've seen that Delhi has recorded record number of electricity consumption over the last few days. It has touched new heights over the course of the last week itself. Electricity Minister Atishi had spoken about this as well. You yourself are standing under the shade. We can see people walking behind you who are also covering themselves in dupatta as well to give some slight relief. What's the situation like on the ground? You've been reporting for days at end from the ground, even while voting was taking place a few days back. Has anything improved, or is it just becoming worse now? Well, yes, Pia, right now I am in Delhi NCR and the situations are getting worse and worse because the temperature is rising in this area, and as you can see behind me that daily commuters are still commuting for, they are going to their works because right now the time is 10 a.m. and it's the heavy traffic rush timings also. But to get relief from this scorching heat, people are covering themselves from dupattas, or they are searching for the shades to stand under the shades. And if we talk about the temperature and the situations right now that are in Delhi NCR, then these are getting worse and worse because yesterday we saw that in the Mungeshpur and the Najafgarh areas, the temperature touched the Celsius of 48 to 49 degrees Celsius in these areas. And right now Delhi NCR at 10 p.m. is scorching at the temperature of 39 to 40 degrees Celsius, and it has been expected and predicted by the IMD that when the time goes up and around 12 to 3 p.m. the temperature will be at 45 to 46 degrees Celsius in the Delhi NCR, and Delhi NCR is recording a new setting new records as the temperature is concerned. And also yesterday we saw that the Health Minister of Delhi, Saurabh Bhardwaj, took a meeting and a whole discussion was done because the patients of heat stroke or dehydration are increasing day by day because the situations here in Delhi NCR are very much worse because of the rising temperatures. So Saurabh Bhardwaj has also took concern of this matter in his hands, and it has been advised and it has been said by the government of Delhi that some beds will be conserved for the heat stroke patients
restrictions in several hospitals, and several guidelines are also being issued by the government of Delhi that people should avoid coming out of their homes in between the 12 to 3 p.m. Timings, because at that time the sun is at the utmost level and the temperatures on those timings are very much high in the Delhi NCR. And also, if we talk about the upcoming days, then the red alert has been issued in this area and the heat waves are predicted. That's why also Delhi NCR and Delhi government is very much attentive in that way, and it has been predicted that the heat waves will continue to trouble the daily commuters and the people of Delhi also. And if we talk about the relaxation, if Delhi NCR people are thinking that they might get relaxation in soon upcoming days, then it's not happening, because IMD has already predicted that the monsoon in Delhi NCR is predicted to hit on 25th or 30th June. So there is almost 1 month in which the Delhi NCR people, the daily commuters or the people who are coming out of their homes due to their works or any other reasons, any other important reason, they have to still get tortured by this scorching heat, because right now I am under the shade, but as you can see, if we show you the visuals, that there are people who are traveling on their vehicles, but due to this scorching heat, we can see on their faces that they are in trouble, and this scorching heat is affecting them. And these are the people, these are the daily commuters who at 10 a.m. in Delhi right now are going to their works, because 10 a.m. is the most traffic hours in the Delhi NCR, but they cannot do anything. They have to go to their works and they have to leave their homes, but it has been advised. And also we on Newsx advise people not to come out of their homes if nothing important is happening or they don't have any important work, because this climate, Pia, is very much torturing and can affect the health of the people, because the problems like dehydration, heat strokes, whether the skin problems or the eye problems are increasing day by day, and the people in the hospitals are increasing due to the heat strokes. So this is a very alarming situation right now in Delhi NCR, and people should take care of their health. They should, I also urge to all the people who are watching Newsx that they should take proper water. They should add healthy, like fruits like cucumber or the kakadis in their health also, because it will help people to maintain a good health or not to get dehydrated, because this is a very serious situation right now. And also in fact carry a packet of ORS as well, just in case of emergencies. And also with us on the broadcast is my colleague Prashant Yaduvanshi. Is joining us live from Jaipur, Rajasthan. Of course, witnessing soaring temperatures. It is perhaps the state that is in fact grappling with an intense amount of heat wave that is sweeping across North India. There is no relief. In fact, temperatures are also surging by about 7 degrees Celsius at night as well. So even though we expect there'd be some sort of relief over the course of the day as soon as the sun sets, but in Rajasthan it seems that things are not well at night as well. जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो है गर्मी का सितम लगातार जारी है। चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव के कारण लोग पूरी तरीके से त्रस्त हो गए हैं, और ये बढ़ती गर्मी के कारण कहे कि कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है चिंताजनक हो गई है। इस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कल जो कहे खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खिवसर, उन्होंने स्वास्थ्य भवन में तमाम जो चिकित्सा एवं मेडिकल से जुड़े जो भी अधिकारी थे उनको सबको स्वास्थ्य भवन में बुलाया और उनसे जो है फीडबैक लिया। साथ ही उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि किस तरीके से जो है अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुचारू करें। जिन अस्पतालों में वार्ड में या छोटी सी डिस्पेंसरी में भी कूलर एसी पंखे खराब हो उनको तुरंत जो है दुरुस्त कराया जाए। अगर वो सही होने की स्थिति में नहीं है तो वहां पर उनकी जगह जल्द से जल्द नए कूलर एसी लगवाए जाए। मगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो है एसीएस भी अलग अलग सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग कर रही है, जायजा ले रही है कि जो हीट वेव से निपटने की या कोई व्यक्ति गर्मी से घायल होकर अस्पताल में पहुंचता है तो किस तरीके से उनके इलाज की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब स्थिति दिनों दिन चिंताजनक होती जा रही है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो राजस्थान के अधिकतम जिलों में जो है टेम्परेचर करीबन 50 के पास पहुंच गया है। 49.4, 49.6 के करीब जो है टेम्परेचर मापा जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और पिलानी, कोटा, जैसलमेर, गंगानगर
ऐसे कई जिले हैं जहां पर टेम्परेचर 50 के पार हो गया है या 50 के पास हो गया है। अगर राजधानी जयपुर की अगर बात करूं तो राजधानी जयपुर में 45 से 46 डिग्री जो है टेम्परेचर मापा गया है, मगर जो है स्थिति इस तरीके की हो गई है कि जब सुबह थोड़ी शीतल हवा चलती है तो वो धीरे धीरे हीट वेव में परिवर्तित होती है और वो हीट वेव के कारण लोगों को खासा परेशानी देखने को मिलती है। तस्वीरें हमने राजस्थान से वो भी देखी थी जब लोग हैं बीमार होकर अस्पताल में पहुंचे थे तो बर्फ के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा था। हीट वेव के चपेट में आकर जो लोग हैं वो अनकॉन्शियस होकर जब अस्पताल में पहुंचे तो प्राथमिक उपचार के दौर पर बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही डॉक्टर्स और मौसम विभाग की माने तो साफ तौर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कुछ दिन जो लोग हैं वो अति आवश्यक काम हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में सुरक्षित रहे ताकि इस बढ़ती गर्मी और हीट वेव के कारण अपना बचाव किया जा सके। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग किसी काम काज की या मजबूरी में बाहर निकलते हैं तो किसी चीज का सहारा ले, अम्ब्रेला या किसी कॉटन के दुपट्टे का इस्तेमाल करें, अपने सर को ढककर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें और ताकि जो है आप इस भीषण गर्मी के कारण खुद का बचाव कर सके। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी इस पर अलर्ट है। एसीएस अलग अलग अस्पतालों में मॉनिटरिंग कर रही है। कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, उसमें साफ तौर से तमाम आला अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि जो है फील्ड में जाकर लोगों को इस तरीके से प्रचार प्रसार करें, उनको ये इस बारे में अवगत कराए कि इस बढ़ती गर्मी के कैसे अपना बचाव करें, किन चीज़ों का उपयोग करें, बाहर ना जाए, यदि बाहर जाते हैं तो किन चीज़ों को अपने साथ रखें। साथ ही जो है ढीले कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें, ढीले कपड़े पहने ताकि जो है हवा आपको मिलती रहे जिससे जो है बेहोशी जैसी स्थिति ना बने। साथ ही अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है। जांच से लेकर दवा तक किसी भी प्रकार से किसी भी मरीज को परेशानी ना हो, इसकी खुद मॉनिटरिंग करने के लिए चिकित्सा मंत्री के द्वारा एसीएस को निर्देश दिए गए हैं। एसीएस लगातार अस्पतालों के दौरे कर रही है। And this is very imperative to do. With that, I would like to thank all of you for joining us on the broadcast, sharing what is happening on the ground. We will continue to track further news and updates, but due to paucity of time, we're dipping into a quick short break. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.